Hope you are doing well and in the best of your health. So today I am making another video from another room of my office located at Sector 49 from Winwealth Infra's office. So today I am just see the view from outside, the outside view of my office. So you can see this M3M IFC tower from my office window. So why I am showing you this M3M IFC tower? Because today I'll be talking about M3M and M3M's Selfest, the Big Billion Day sale, which is back again after 2025 and 2026. So what we can deduce from this Big Billion Day sale? Let's take out some points. So first of all, they are using the word sell in their advertisement. I think it is a bit of deceiving to some extent, because it is not sell, it is called port your property. So it should be always be used as port, and the whole broker community should be careful while telling to the customers that they are going to a sell fest. Actually, it is not a sell fest. You will not be able to sell your property. You have to buy another property that is 1.x date times to 2 times of the current investment. So टेक्निकली अगर आपने 6 रुपये लगाए थे तो आपको उसका 1.5 गुना अभी देना पड़ेगा, ठीक है. एंड द बिल्डर M3M दे विल बाय, वो अपने आप उसका प्राइस डिसाइड करेंगे कि वो कितना प्रीमियम पे करेंगे आपको आपकी पुरानी प्रॉपर्टी पे. सो द गेम इज़ इन देयर ओन हैंड, बिकॉज यू आर बाइंग देयर ओन प्रॉपर्टी एंड दैट टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी मेड. सो and at what price they are going to sell that property is also in their own hands. So it is a win-win situation for them. Probably they are giving you illusions that you will be coming out of coming out from the aggressive milestones, payment plans. So you should be careful every time while investing in some project and while selecting the payment plans. So if you are selecting a CLP payment plan, you will be getting the demand for money twice a year. So it is going to be tough for you. और उसी को यूज़ करके वो अपना M3M का सेलफेस्ट जो है हर बारी लगाने की कोशिश करते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. So let me read few points from that I have jotted down to understand what this M3M का सेलफेस्ट is all about. So under the garb of the word sell, they are asking you to invest 1.5 time to 2 time in their own projects. But weren't the projects already sold out in the first week itself? Like we heard about Skyark, जो शायद एक हफ्ते के अंदर 900 यूनिट्स बिक गए थे. तो एक बात तो ये है कि आपको हमेशा रेरा की वेबसाइट के ऊपर जाकर के इनकी इन्वेंट्री चेक करनी है, जो एज पर रेरा दे हैव टू डिस्क्लोज द इन्वेंट्री ऑन अ क्वार्टरली टाइमलाइन बेसिस. तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के पास जा रहे हो या किसी भी बिल्डर के पास जा रहे हो, आप उसकी टाइमलाइन चेक करो और उसकी इन्वेंट्री को ज़रूर चेक करो कि कितनी इन्वेंट्री उनकी बच रही है और वो मार्केट में कितनी बोल रहे हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो, आर दे बाइंग योर प्रॉपर्टी एट करेक्ट प्रीमियम और सेलिंग देयर प्रॉपर्टी एट करेक्ट प्राइसिंग? आर दे ट्राइंग टू गेट द कस्टमर स्टक इन अ विशियस सर्कल ऑफ नेवर एंडिंग इन्वेस्टमेंट विद M3M with no exits, as clearly end users seems to be not present at the current point of time? What is actually happening? We have seen one event where Mr. Bansal was instigating the brokers to buy property in GIC in Manesar by themselves, and they will take it back after a few years at some good premium. You can apply your own brain whether why he's doing like this. Okay, I'm not saying anything. We have seen another event in the GIC. We have seen Mr. Bansal dancing with Nora Fatehi on one of the event of Ali Saab launch. So does this mean that the end users, investors are coming easily to the company? That is why so many efforts are being made. You can apply your own brain and give it a thought. M3M have already given few iconic projects to Gurgaon, like M3M Urbana in Sector 67 IFC जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके अलावा एक IFC 2 ऑलरेडी लॉन्च हो रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जो कि शायद अच्छी प्राइस पे, काफ़ी तगड़ी प्राइस पे लॉन्च हो रहा है. उसके अलावा M3M का एट्रियम आया था सेक्टर 57 पे, वो
अभी कुछ टाइम तक पहले तक खाली था, इसलिए इन्वेस्टर्स ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें कि जो कमर्शियल होता है उसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर अगर आप अभी जाकर देखोगे तो उसकी शॉप्स मोस्टली फिल्ड हैं, बर्गर किंग है, हल्दीराम है और ये सारे ब्रांड्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए हैं। तो कमर्शियल को भरने में टाइम लगता है, उसमें आप कभी भी परेशान ना हो कि उसमें से जल्दी निकलना है, इट विल टेक टाइम। फिर उसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट, स्काई वॉक, गोल्फ एस्टेट, सॉलिट्यूड, अंतालिया हिल्स एटसेट्रा, इन सब में प्रीमियम आया है। M3M ज्वेल जो है और जो M3M का जो एक नया आ रहा है पैरागॉन, अगर आप दोनों की लोकेशंस आप फिजिकली जाकर चेक करोगे तो दोनों की लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं। तो ये लोग भी ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी आपको प्रीमियम देके जाएंगे। तो किसी को इसमें इन्वेस्ट करना हो तो डू लेट मी नो, आई कैन गाइड। And however, it is also blamed that the builders start making demand before completion of construction milestone in CLP plans, जो construction link plan होते हैं, and start imposing frivolous interest and penalties. The project Skyark is deemed to be the most iconic project, is also fetching bare 1500 rupees premium in current market scenario. However, not many resales have happened. बट एट द सेम टाइम नो प्रोजेक्ट इज स्टक, कोई भी इनका प्रोजेक्ट स्टक नहीं है और सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाती हैं और उनका पोजीशन भी मिल जाता है। और अभी तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी सुनने में नहीं आया कि जो पोजीशन मिलने के बाद में बिल्डर ने एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया या उन एमिनिटीज़ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आया है इस पर्टिकुलर बिल्डर के बारे में। Few issues are reported in Smart World Gems, सेक्टर 89, ब्रॉडवे, कॉर्नर वॉक, सेक्टर 113 का जो मार्केट है, लाइक नो टेकर्स, नो लीजर्स इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। पर वो इनका एक, मेरा अभी भी यही मानना है, जो भी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे, उसमें से डर करके कभी भी पैसे ना निकाले। जैसे कि स्काई आर्क प्रोजेक्ट है, अगर करंटली लोगों की रीसेल नहीं हो पा रही है या फिर प्रीमियम नहीं आ रहा है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम देके जाने वाला प्रोजेक्ट है। रीज़न ये है कि इसी के कंपाउंड में ट्रम्प टावर 2 30,000 रुपये स्क्वायर फुट पे लॉन्च हुआ है। तो सर्टनली जब इतने प्रीमियम पे वो इतना एक प्रीमियम प्रोजेक्ट सेम कंपाउंड के अंदर खड़ा हुआ है या फिर खड़ा होने वाला है आने वाले वक्त में, तो वो प्रोजेक्ट प्रीमियम ना दे, ऐसी चांसेस बहुत कम है। और उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, जो कि सामने उसके जेनपैक्ट है, पेप्सिको है, टाटा प्रीमंती है, मतलब उसकी, और उसके सामने एक अच्छा मेन रोड है। तो ऑलमोस्ट ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक अच्छा प्रीमियम देने वाली प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद M3M की ड्रीम सिटी है, जो प्लॉट्स आए थे यहाँ पे पानीपत में है, उसमें भी अच्छा प्रीमियम निकल के आया है। फिर द होल एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर बेस एज टू ऑलवेज टेक अप्रोप्रिएट एंड इन्फॉर्म डिसीजंस। तो सिर्फ बिग बिलियन सेल की जो आउटर जो एडवर्टीजमेंट है, जो कि एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट है, उसके ऊपर ना जाएं, उसका क्रक्स पहचानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। If anyone is interested in any of the M3M Smart World projects, do let me know. I can guide in the comments and give your thoughts about the Big Billion Day Sale कि इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है और यहाँ पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितना ज़्यादा इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर बार बार बिग बिलियन डे सेल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पिछली वाली जो फेस्ट आई थी उसके अंदर ये अपने जो बची हुई इन्वेंट्री जो थी, छोटी मोटी जो भी इन्वेंट्री इनके पास है, रह गई थी उन प्रोजेक्ट्स में, उसको सेल नहीं कर पाए पिछले वाले फेस्ट में, इसलिए दूसरा फेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी है। मार्केट अभी थोड़ी सी स्लो है, अगर ऐसे में इन्वेस्टर्स मौके का फ़ायदा उठा करके चौका मारें और जो क्या कहते हैं डिस्ट्रेस डील्स हैं उसके अंदर घुसने की कोशिश करें तो ये काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है प्रॉफिट कमाने का। Let me know if anyone is interested in any kind of such deal. I can get you some good deals. Thank you. Namaskar. Thank you.